Hello guys, how are you? Hope all of you are doing good, right? And every one of you are doing investing your time into the questions of kinematics. So students, I want to tell you that you have to invest this time into the questions solving of kinematics. क्योंकि बेटा अभी आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है, ये काइनेमेटिक्स नॉट ओनली आपका ब्रेन को ओपन करेगी फिजिक्स के अंदर, इवन कि आपका ओवरऑल आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा. व्हेन यू विल थिंक अबाउट डिफरेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू थिंक अबाउट द डिफरेंट सिनेरियोज. तो अगर आप बेटा जितना डिफरेंट सिनेरियोज को डिफरेंट वे से सोचोगे, उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन शार्प होगा. तो थिंग इज यू हैव टू कीप योर माइंड काम and solve the questions very calmly. You have to see the values, figures, see what examiner or question is asking from us, and accordingly we have to think. And when you think, students, it is not necessary that every time you think, first time you think is a correct thinking. That is what we need. That you do a mistake. Because when you do a mistake, you will learn from the mistake. But if you do not practice question, you don't do a mistake, then you don't learn. So we have to do mistakes. और हम अपनी mistakes से सीखते हैं. हम कभी भी बैठे बैठाई नहीं सीखते हैं. For example, if we want to learn a bicycle, if we are looking at the tutorial of a bicycle, that how to drive a bicycle, how to pedal a bicycle, how to make a balance a bicycle, I say you see 1,000 times the same video, 1,000 times the different concepts of riding a bicycle, but this is all waste if you don't do the practical of riding a bicycle by your own. When you ride a bicycle by your own, you will come to know that how to deal the things practically. Similarly, guys, you all have to solve the questions practically. Solve only 5 questions a day, but solve a valuable questions, different questions, which open your mind, which opens your scenario, which opens your way of thinking. Because in physics, we don't have to learn only kinematics. We have to see how to see a problem, how to face a problem, how to solve a problem. What are the different methods to solve a particular problem? Right? So you have to first learn calmness, then you should know what you are doing, then you see the problem, and then you solve the problem. Right? So everyone try at least 5 to 10 new conceptual questions या good questions, so that you will feel yes, आज मैंने कुछ problems की practice की है. अगर आपने एक basic book को complete कर लिया, you find it very easy, you have completed that, go on a higher level book, go on H.C. Verma. Mind it, before going to H.C. Verma, your basic book is 100% solved. 100% solved means, doesn't mean that you have solved only 5 or 10 questions from that book and then you say ये तो मेरे से हो गए, now I should go to H.C. Verma or Erudolf. No use. So first solve kinematics from your basic book. Once you will learn, once you will getting the enjoyment by solving the questions, automatically आपके अपने मन से आएगा, यस अभी मेरे को थोड़ा सा और ऊपर वाला लेवल सॉल्व करना है.
I have sent you exercises, exercise 1, 2, 3, 4. Once you have completed 1, 2 exercises, आपके मन में अंदर ही होगा कि हाँ, now I have to solve exercise number 3. So students, in physics, you don't learn by only seeing the video lectures. You will learn when you solve the questions. You will learn when you make mistakes in the questions. Right? It is not that how much time you are looking at a particular thing. It depends how much time you are investing in that thing. So guys, we are investing this time. What I want to explain you is, if only 1 or 2% listening to me changes with which the thing I am saying to you, this lecture is successful for me. I don't want everybody to follow me. बट अगर आप में से कोई भी 2 बच्चों को फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. राइट? सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर we will do a new topic, that is distance traveled in nth second, and some good questions of kinematics. We will solve some good questions of accelerated motion. But before going to accelerated motion in y dimension, अभी हमने y dimension के accelerated motion नहीं start किया था, but before moving to that, we will complete distance traveled in nth second. Right? So to start with distance traveled in nth second and to do the derivation of that particular distance traveled in nth second, I am going to start this particular topic with a question. In this question, you are provided with a car, and car is initially at rest because the initial speed of the car is 0 meters per second. Now, the acceleration of car is 2 meters per second square, and t equals to 0. It is all the conditions given you at t equals to 0. Now in this question you have to find the distance traveled by car in 1 second. तो आपको 1 सेकंड के अंदर कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करेगी, आपको वो फाइंड आउट करना है. सिमिलरली इन 2 seconds, in 3 seconds, 4 seconds and 5 seconds. Now we can very clearly see that initially car is stationary and the acceleration is constant. Because acceleration is constant, so I know that this car will move only in one direction, one dimension, and in one direction only. So distance will be equals to displacement. तो distance की वैल्यू displacement के इक्वल होगी. तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे से डिस्टेंस पूछा गया है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड के अंदर. तो I have applied the formula, that is s is equals to ut plus half at square. तो इसके अंदर ये एक मेरे पास जनरल इक्वेशन आ गई जहां पर where I have put initial speed equals to 0 and acceleration is equals to 2 meters per second square. And I get d equals to, this term becomes out to be 0, 2 will cut out with 2 and I will get t square. Only d equals to t square. So if I put the value of t equals to 1, I will get d equals to 1 meter. It means at t equals to 1 second, a car will travel a distance of 1 meter. So I will say, if car is standing over here, this car will come over here. Sorry, this car will come over here. That is t equals to 1 second. Similarly, with further passage of time, the car will travel the more distance. That is, at t equals to 2 seconds, it will travel the 4 meter distance. Now, the question is, this 4 meter is from t equals to 0. I am again repeating, this is the distance traveled by the car from t equals to 0 to t equals to 2 seconds. The car will come little bit forward. ये जितना आगे आई है, उसे थोड़ा सा मैं ज़्यादा आगे बनाऊंगा. Similarly, 3 seconds पर गाड़ी 9 मीटर डिस्टेंस आगे आ गई है. तो what I want to say is, sir, this distance
is 1 meter. This distance is 4 meter, and similarly t equals to 3 seconds per. Car will come over here. Car will some over come over here. और गाड़ी का टायर छोटा कैसे हो गया? बच्चों को ये t equals to 3 seconds. In 3 seconds, car will travel 9 meter distance. So I will say that 9 meter is the distance traveled from t equals to 0. तो यहाँ से गाड़ी ट्रेवल करेगी 9 meters का डिस्टेंस till 3 seconds. Similarly, t equals to 4 seconds पर गाड़ी कुछ यहाँ पर आ गई. I will say, let's say car is at over here. T equals to 4 seconds. तो 4 सेकंड में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? That is 16 meter. In mind it, the 16 meter is the distance traveled from the starting. 16 meter till t equals to 4 seconds. So now we have marked the similarity equals to 5 seconds per it will travel the 25 meter distance. That is from starting to 5 seconds it will travel the 25 meter distance, and similarly 6 seconds, 7 seconds and so on. This will go graphical like this. Okay. Now the questions come distance traveled in nth second. Let's say I ask find, question is find, sorry, distance traveled by car in, find the distance traveled by the car in third second. Mind it. Now you will not say that कि सर सबसे पहले बेटा अभी हम मतलब समझने व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड. ठीक है, इसका मतलब क्या है? नाउ somebody asked you कि सर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड. नाउ माइंड इट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 seconds and distance traveled in third second, right, which we have to learn. तो अब आप ये नहीं बोलोगे सर इसका आंसर 9 meters है. सर इसका आंसर 9 meters है. No, this is wrong. So what do you mean by distance traveled in third second? It means third second means distance traveled by car between t equals to 2 seconds to t equals to 3 seconds. T equals to 2 seconds to t equals to 3 seconds. That is time gap of 1 second. तो बच्चों अब सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर थर्ड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल आ जाता है गाड़ी का. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है? तो अब मैंने आपको अभी बोला कि अगर आपको थर्ड सेकंड का डिस्टेंस वो पूछ रहा है तो अब वो आपको ये नहीं पूछ रहा कि उसने गाड़ी में स्टार्टिंग से लेकर हाउ मच इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट t equals to till 3 seconds. Basically the guy is asking you what is the distance traveled in third second means how much distance car has traveled between t equals to, एक कम कर दो, t equals to 2 seconds से लेकर 3 seconds के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो बेसिकली
This is the thing the examiner is asking. This distance. So over here, I know that. ठीक है, सभी को clear हो गया. Everybody is clear with that. तो third second means 2 seconds से 3 seconds के बीच में. और अगर यही fourth second होता, तो fourth second का क्या मतलब होता कि t equals to 3 seconds से लेकर t equals to 4 seconds के बीच में कितना distance travel किया. तो हर ये 2 से 3 के बीच में गैप कितना आया? 1 सेकंड का. 3 से 4 से बीच में कितना टाइम का गैप आया? 1 सेकंड का. So, students, we have to find this distance. अब आप बोलोगे सर, if we have to find this distance, so sir, we can very clearly see that this total distance is 9, and up till from here to here it is 4, and if we want to find out the distance, this distance will be 9 minus 4, and 9 minus 4 will be, that is 5 meters, and that is the answer. So distance traveled in third second. देखो ये मैं इसको ऊपर लिखूंगा, कभी भी ऐसे होगा nth सेकंड का डिस्टेंस होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा, राइट? समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो थर्ड सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके इक्वल आ गया? दैट इज डिस्टेंस ऑफ, अब मैं बोलूंगा 3 सेकंड्स में गाड़ी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 2 सेकंड्स. तो ओवर हियर इट इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दैट इज 9 मीटर्स, एंड 2 सेकंड्स में उसने कितना ट्रेवल किया? 4 मीटर्स, एंड द आंसर इज दैट इज 9 minus 4, that is 5 meters. So this will be my answer. Similarly, if somebody asks me what is the distance traveled in 4th second, yeah, let's say I will say 5th second. तो 5th second का distance traveled किसके इक्वल होगा? It will be equals to, that is distance traveled in, now everybody tell me, तो अगर आपको थर्ड का निकालना था तो आपने 3 में से 2 के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट किया, और अगर आपको फिफ्थ का निकालना तो आप किसके सब्ट्रैक्ट करोगे डिस्टेंस को? स्टार्टिंग से देखेंगे हम कि 5 मीटर्स तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड्स. देन आई विल वेरी क्लियरली सी ओवर हियर इट इज इक्वल्स टू दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स, और 5 सेकंड्स का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? दैट इज, आई कैन वेरी क्लियरली दैट इज 25, ठीक है? और मेरे पास 4 सेकंड्स में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दैट इज 16, right? That is minus 16 meters. So 25 minus 16 is equals to 9 meters. So this will be my answer. That is distance traveled in 5th second. And similarly, so on, you can find the distance traveled in 9th second. ठीक है? Now, अभी हमने ये जो सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है? वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? हमने, अगर आपको 5th सेकंड का डिस्टेंस निकाला था, अब आपको 2 इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा. लेट्स से अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस इन 3rd सेकंड, देन you what you will do normally you will say, sir, first I will find 3 seconds का डिस्टेंस s is equals to ut plus half into square लगाकर, and then I will again apply s is equals to ut half into square equals to 2 seconds, and then I will subtract, and then I will get the answer. So we will directly see what is the formula of distance traveled in nth second. So we will basically derive the distance traveled in nth second या tth second. So over here we can very clearly see, let we are having a car and its initial speed is equals to 0 and acceleration is a. Initial acceleration is a. Right? I will solve this with the blue pen so that you can differentiate between a new and previous question. Right? So I am again writing it over here. That is, I am having a car whose initial speed is 0, right? And acceleration is a. I am solving the general equation. And somebody asked me what is the distance traveled in nth second.
Now see everybody, this I have taken n. This n represents time. For example, over here n represents 3. यानी कि मैं थर्ड सेकंड पर पूछ लिया. यहां पर मैंने कहां पर पूछ लिया? n equals to 5. That is n की वैल्यू 5 होगी. अब n की वैल्यू मैं एक जर्नल ले लेता हूं. I have to find the nth सेकंड, यानी कि nth सेकंड, एक nth सेकंड है जहां पर मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है. तो अगर मेरे को nth सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो आई कैन से दैट सर देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t इक्वल्स टू n सेकंड्स में गाड़ी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम n minus 1 सेकंड्स. यस और नो? सो अगर आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि सर ने ये कैसे लिखा है, हाउ आई हैव रिटन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो यू हैव गॉट अंडरस्टूड द पॉइंट. तो अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको नहीं करवाया. आई हैवंट मेड यू डन द फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट आई हैव मेड यू सॉल्व द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसमें अगर आपको थर्ड सेकंड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, देन यू हैव टू सबट्रैक्ट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड्स. दैट इज 3 and over here it is 3 minus 1. Over here it is 5 and over here it is 5 minus 1. यानी कि एक कम सेकंड वाला डिस्टेंस उसमें से सबट्रैक्ट कर. तो अगर आप nth सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल को फाइंड आउट कर रहे हो, देन यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n minus 1 seconds. Now you tell me, I know the equation that is distance is equals to, that is a distance is equals to ut plus half a t square. So students, I am not taking over here initial speed equals to 0. I am taking initial speed equals to u हम और जर्नलाइज कर रहे हैं, राइट? एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a. हम एक्सेलरेशन को ये ले रहे हैं और इनिशियल स्पीड को u ले रहे हैं. तो अब बेटा यहां पर यह इनिशियल वेलोसिटी को u ले रहे हैं, इसको स्पीड रहने दो, इसको वेलोसिटी ही करें. तो अब बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स किसके इक्वल होगा? तो मेरे को पता है t की वैल्यू को मेरे को क्या पुट करना है, n पुट करना है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t इक्वल्स टू n किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल्स टू, देखो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को ये इक्वेशन पता है, राइट? मैं पहले मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है. तो मैं क्या करूंगा, मेरे को dnth निकालना है. तो dnth निकालने के पहले मैं dn निकालूंगा, फिर dn minus 1 निकालूंगा, फिर मैं उन दोनों वैल्यूज को इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा, राइट? तो व्हाट इज dt इक्वल्स टू n? तो मेरे को बेटा t की वैल्यू को क्या पुट कर देना है? n पुट कर देना है. तो इट विल कम्स आउट टू बी u n प्लस हाफ ऑफ a इनटू n का स्क्वायर. तो बेसिकली आई एम रिपीटिंग, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. अब आप बोलोगे सर आपने t की वैल्यू को n क्यों पुट कर दिया? तो बेटा मैं t इक्वल्स टू n सेकंड्स पर डिस्टेंस निकालना है. जैसे t इक्वल्स टू 5 हो गया, t इक्वल्स टू 6 हो गया, t इक्वल्स टू 10 हो गया. तो अगर मेरे को 10 सेकंड्स पर डिस्टेंस निकालना है तो मैं यहां पर t की वैल्यू को 10 पुट करूंगा ना. अब ऐसे के लिए मेरे को जर्नली निकालना है t इक्वल्स टू n सेकंड्स पर, और अगर मेरे को t इक्वल्स टू n सेकंड्स पर निकालना है तो मैंने t की वैल्यू को n पुट कर दिया यहां इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर. तो ये मेरे पास क्या चीज आ गई? ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स आ गया इन जनरल इक्वेशन आ गया. एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन. एंड सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब मेरे को नेक्स्ट कौन सा निकालना है? n minus 1 सेकंड्स पर निकालना है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू n minus 1 सेकंड्स पर मेरे को निकालना है, व्हिच विल बी इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड इज u एंड टाइम इज n minus 1. अब मैं t की वैल्यू को क्या पुट कर रहा हूं? आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू n minus 1 इन दिस जर्नल इक्वेशन. That is u into n minus 1 plus half a into n minus 1 का whole square. And this is my equation 3, right? This is my equation 3. Now what I will do, now I will put
value of second and third equation in equation first. तो d nth right, d nth, तो d के d nth right, so which will be equals to dn की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू u n plus half a n square minus bracket on that is u into n minus 1 plus half a into n minus 1 का whole square. So I have put it over here, put it like over here, right? तो सभी को क्लियर हो गया होगा ये मैंने कैसे पुट किया, right? Now next step, d nth will be equals to un को मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ प्लस हाफ ए एन स्क्वायर को मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, माइनस लगाया, बिग ब्रैकेट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या देगा, यू एन माइनस यू, अभी बिग ब्रैकेट ऐसी कैसी है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, राइट, प्लस हाफ ए इनटू, अगर बेटा इसका मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करूंगा, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1 एंड माइनस 2 n into 1 दैट इज 2 minus 2n, राइट। तो ओवर हियर इट इज दिस इक्वेशन, तो फर्दर आई विल राइट d nth will be equals to un plus half of a n square माइनस, अभी मैं ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूं क्योंकि मैं इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट, दैट इज यू एन माइनस यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, हाफ ए को सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट विल बिकम्स आउट टू बी हाफ ए एन स्क्वायर, ये प्लस 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 हाफ ए प्लस माइनस माइनस, अच्छा ये हाफ ए ये 2n है, तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए एन। आई थिंक सो यहाँ तक सभी को क्लियर है ये कैसे आया टर्म। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यू एन ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए ये आ गया और प्लस माइनस माइनस, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया, ए एन माइनस ए एन आ गया, राइट। नाउ आई विल ओपन दिस ब्रैकेट, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो इन सभी टर्म्स का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो बट आई विल सी डी nth will be equals to un plus half a n square, so now you will clearly see इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस un plus u माइनस हाफ a n square माइनस हाफ a प्लस a। तो यहाँ से बेटा अगर हम देखें ध्यान से तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, यू एन सर माइनस यू एन कैंसिल हो रहा है, ये प्लस हाफ ए एन स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, दैट इज डी nth विल बी इक्वल्स टू यू ये आ गई टर्म, ठीक है, यू माइनस हाफ ए प्लस ए एन। तो एवरीबॉडी क्लियर कि मैंने ऐसे टर्म को ऐसे कैसे करके लिख लिया, ठीक है। अब आप सभी बच्चे आगे देखें मैं क्या कर रहा हूं, आई एम राइटिंग इट लाइक डी nth विल बी इक्वल्स टू यू प्लस, ठीक है। अब बेटा पहले मैं इस टर्म में से और इस टर्म में से, इन दोनों टर्म में से a/2 को कॉमन निकाल रहा हूं, या अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते हो तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर an को पहले लिख रहा हूं प्लस an माइनस a/2,
तो अब बेटा मैं इन दोनों टर्म्स में से a/2 को कॉमन निकाल रहा हूं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो बाय 2 है ही नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ। ठीक है, आई विल डू ओवर हियर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो अब a/2 को बाहर निकाल लिया, अगर मैंने a/2 को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, दैट इज 2n बच गया, और यहाँ पर a/2 को निकाल लिया तो इसके यहाँ पर क्या आ गया -1। तो बेटा ये जो सा आपके पास फॉर्मूला आया, this particular formula, this is the formula of distance traveled in nth second, and this is the one of the most important formula of this particular chapter, that is distance traveled in nth second. So I am making a bulb over here, so bulb means this is the important formula. तो अब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव क्यों किया, ये आपने फॉर्मूला लर्न क्यों रखना है, ठीक है, you can very clearly see, तो we will see that whether this formula is right or not, ठीक है। अभी मैंने इसको जनरली सॉल्व किया for initial speed v, u and acceleration a. Acceleration a can be positive or negative, u can be positive or negative। तो अब बेटा we will check this formula is correct or not while finding out the question of this answer। तो हम देखते हैं यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल स्पीड कितनी थी, यहाँ पर u क्या है इनिशियल स्पीड, a क्या है एक्सेलरेशन, और n क्या है जिस पर्टिकुलर सेकंड के अंदर nth सेकंड के अंदर मेरे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब बेटा मेरे को यहाँ पर कौन से सेकंड पर फाइंड आउट करना है, t इक्वल टू थर्ड सेकंड पर फाइंड आउट करना था, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तो d थर्ड सेकंड के अंदर फाइंड आउट करना था। तो आई विल सी u की वैल्यू कितनी है उस ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 into 2 into कौन से सेकंड्स पर फाइंड आउट करना था, n की वैल्यू कितनी थी 3 minus 1। तो अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो d थर्ड सेकंड पर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ये 0 ही है, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 3 2 is 6 and 6 minus 1 that is 5 meters। तो you will very clearly see that अब आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस नहीं बनानी पड़ी, जैसे पहले आपने दो इक्वेशंस बनाई, पहले आपको 3 सेकंड्स का डिस्टेंस फिर 2 सेकंड्स उसको सब्ट्रैक्ट किया फिर आपके पास आंसर आया। यहाँ पर आपने एक ही इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट किया और आपका आंसर आ गया। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करके। तो मैं देखता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड व्हिच विल बी इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन 2। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी थी 2, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2। मेरे को कितने सेकंड्स पर निकालना था, 5th सेकंड पर निकालना था, दैट इज 2n minus 1। तो 2 कांस्टेंट है, 2 n की वैल्यू कितनी है 5 minus 1। तो अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व आउट करूंगा 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 to the 10 and 10 minus 1 will be 9 meters, and you can very clearly see that over here 9 meter and over here 9 meter is exactly same। तो इसको हमने नॉर्मली किया था s = ut plus half it वाले इक्वेशन से, और इसको हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से सॉल्व किया है। सो दिस इज द फॉर्मूला, तो वी हैव चेक्ड इट आउट that it is exactly giving the right formula, so this formula is exactly correct। तो यहाँ पर u is the speed, a is the acceleration, n is the nth second at which you have to find the value of distance traveled in nth second। So everybody note it down, and now we will do some 2 questions on this particular formula, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके इस अगर कुछ कोई चीज आपकी नोट डाउन करनी रह गई है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट बेटा। हाँ जी बेटा, सो हियर इज वन क्वेश्चन, ठीक है। अ बॉडी डिस्क्राइब्स 20 meters in 7th second, not 7 seconds, it's 7th second, and 24 meter in 9th second। You have to find how much shall it travel in 15th second, right? तो 15 सेकंड का क्या मतलब हुआ, दैट इज बिटवीन t इक्वल्स टू 14 सेकंड से t इक्वल्स टू 15 सेकंड्स के बीच में गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, राइट, उस 1 सेकंड के टाइम गैप के अंदर 14 को लेकर 15 सेकंड्स के बीच में। So everybody stop the video, ठीक है, and solve the question and find out the answer, ठीक है, and after you have find out the answer you open the video and see whether your answer is correct or not। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आपको इस क्वेश्चन को नहीं देखना है, राइट, तो अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है।
तो बेटा यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि अ बॉडी डिस्क्राइब्स 20 मीटर इन 7 सेकंड्स, तो इट मींस 7 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 मीटर्स। तो कभी भी आपने क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, सबसे पहले यू हैव टू राइट व्हाट इज द गिवन इन योर क्वेश्चन। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, फिर आप ये चीज देखोगे कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे को गिवन है 7 सेकंड के अंदर उसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और 9 सेकंड के अंदर उसने 24 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। तो अब आपको 15th सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्विंग करनी है तो यू शुड नो कि आपको क्या पूछा, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट यू हैव टू फाइंड, ठीक है, एंड देन यू लेट। तो यहां पर हमने लेट कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी जब चली, व्हेन द कार हैज स्टार्टेड, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, at equals to 0, nothing is given. So I have let that at initial speed of the car is u and initial acceleration of the car is a. So from the first condition which was given to me, I have written down the equation, because I know that distance traveled in 7th second is equals to 20 and nth second ka distance traveled with this formula, right? This formula we have done previously, right? This is the important formula, right? So अब what I have done, I have put d is equals to 20 and put the value of n is equals to 7 in this particular equation. So this I got this equation, और इसको अगर if I will solve it further, I will get u 7 to 14 minus 1, that is 13, 13a by 2, which is equals to 20. This is the first equation. And similarly from the second equation of the 9 second, I get this particular equation, that is 24 is equals to u plus a upon 2 into 9 minus 1. And that after solving comes out to be u is equals to 9 to the 18 minus 1, that is 17a by 2 is equals to 24. So this is my first equation and this is my second equation. And I am very clear over here that I am having two equations and two variables. U is unknown to me and a is unknown to me. So we should know if we are having two variables, we need two equations to solve that particular values of u and a. अगर हमारे पास तीन unknown quantities होते हैं, then we require three equations. If we having four unknown quantities, then we require four equations. So we require only two equations because two variables are over there, u and a. Now we will solve this first and second equation to get the value of u and a. तो हमने इसको कैसे किया, अभी मेरे को दिख रहा है सर यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, ये 20 है, ये 24 है, तो मैंने सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया ये वाली टर्म से, देखो लेफ्ट हैंड टर्म में से लेफ्ट हैंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और राइट हैंड टर्म में से राइट हैंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो u plus 7a by 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को और इसके 24 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 20 को। तो आफ्टर सॉल्विंग u के साथ u कैंसिल हो गया, तो आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट 17 by 2a minus 13 by a by 2 which is equals to 4a by 2. तो इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू आई विल गेट 2 meters per second पे। And once I will get the value of a, I will substitute the value of a either in this equation or in this equation. I will get the value of u equals to 7 meters per second. And once I will get the value of u and a, now what examiner has asked me? Our examiner has asked me to find the value of d equals to 15. So I put the value that is d15 is equals to u plus a upon 2 into 15. Now n is 15. 15 minus 1 which is equals to 7. U की वैल्यू को 7 पुट कर दिए यहाँ से and a is 2, that is 2 divided by 2 and 15 into 2 is 30. 30 minus 1 is 29. Over here it is 29. And after solving 2 के साथ 2 cancel हो गया, 7 plus 29 that is 36 meter and 36 meter is your answer. ठीक है, I hope so सभी को समझ में आ गया होगा. Everybody can pause the video and write it down the solution. And now everybody have to solve this question, right? This is your next question. ठीक है, ये आपको खुद को करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर वो एग्जैक्टली सेम बोल रहा है, दो कंडीशंस दे रहा है. अगर यहाँ पर डिस्टेंस सेंटीमीटर के अंदर दे रहा है, तो अगर आप d की वैल्यू को सेंटीमीटर के अंदर ले रहे हो तो जब आप सॉल्व आंसर आपका आएगा तो आपका सेंटीमीटर के अंदर ही आंसर आएगा. बट इफ यू वांट योर आंसर इन मीटर्स तो आप पहले ही सभी चीजों को मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर लो. इट इज एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू सॉल्व इट, बट कैलकुलेशंस और यूनिट्स का गलती नहीं होना चाहिए. तो अब बेटा यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवलिंग थर्ड सेकंड इज
400 centimeter, and fifth second is 1200 centimeter. If the motion is uniform accelerated means acceleration is constant, acceleration is not varying. हमारे सिलेबस में है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. How far the body will travel in next 3 seconds. Now examiner is not asking you about the nth distance. यहाँ पर आके फर्क आ जाएगा. Now what examiner is asking, he is asking what is the distance traveled by the car between, what is the distance traveled by the car between, that is देखो 5 seconds तक का उसने बोल दिया कि उसने 1200 मीटर ट्रेवल किया 5th सेकंड के अंदर. एक्सेलरेटेड मोशन है. How far it will travel in the next 3 seconds. Next 3 seconds मतलब 5 से next 3 seconds. तो ये 5 से आगे क्या होगा? 6, 7 और 8. तो वो पूछ रहा है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t equals to 8 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t equals to 5. इस चीज का वो आंसर आपसे पूछ रहा है. अब माइंड इट इज नॉट दैट कि हाँ भी भैया आपने बोला कि सर अब सर इसका भी फॉर्मूला फाइंड आउट करें. नो, इसको करने के लिए आपको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा. कैसे? सबसे पहले आप क्या करो, ऐसे जैसे मैंने अभी पहले ये सारा नेट क्वेश्चन सॉल्व किया, u और a की वैल्यू को निकाला है. अब u और a की वैल्यू को निकालो. वंस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड a. अब आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस निकालो. 0 से लेकर t equals to 8 सेकंड्स तक का डिस्टेंस निकालो टोटल. फिर उसमें से t equals to 5 सेकंड्स तक का डिस्टेंस निकालो. ये वाला डिस्टेंस निकालो. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? दैट इज s is equals to ut plus half ut square. a और u की वैल्यू आपके पास पर दो इक्वेशन से बनेगी. और फिर आप इस टोटल में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. फिर आपके पास ये वाला आंसर आएगा एंड योर आंसर विल बी इक्वल्स टू दैट इज 6000 सेंटीमीटर. This is your answer. और यही अगर आपको आंसर को मीटर्स के अंदर लिखना है तो you will very clearly see divided by 100 that is 60 meters. Right? तो ये मैंने आंसर आपको इसलिए बताया ताकि आप कंफर्म कर लीजिएगा अपना आंसर. राइट? तो पहले सॉल्व कीजिएगा फिर आप अपने आंसर को कंफर्म कीजिएगा. तो आई होप सो एवरीबडी हैज गॉट द पॉइंट. राइट? So everybody solved that question and now we'll do some further question. Right? Note it down. हाँ जी बेटा. Everyone write this question down. Right? Over here. What is the given in the question? A car accelerates from rest at constant rate of 2 meters per second square. एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट का मीनिंग क्या है? दैट इज कार की इनिशियल स्पीड कितनी है? 0. ठीक है. तो वो कहते हैं कार एक्सेलरेट्स एट पहले वो एक्सेलरेट करती है कितनी एक्सेलरेशन से? 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है. तो इफ द कार विल एक्सेलरेट इट विल गेन द स्पीड. ठीक है. जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं we accelerate it, it will increase the speed for some time, then it retards at constant rate. तो accelerate वो कर रही है 2 meters per second और retard कर रही है at 4 meters per second square at and comes to rest. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पर्सन ने क्या किया, अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज किया. रेस्ट पर था, इंक्रीज करके बढ़ाकर फिर उसने साथ के साथ क्या लगा दी? ब्रेक लगा दी. क्योंकि उसकी देखो पहले वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. लेट्स से वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. तो पहले कुछ टाइम के लिए जब वो एक्सेलरेट करता है तो उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो उसका स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होती है. फिर जब उसकी कुछ स्पीड पहुंच गई, अब लेट से आपने गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज किया और आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो गई लेट से कुछ एनी वैल्यू, लेट से 40 मीटर्स पर सेकंड. अब अगर आपको रुकना है तो आप क्या करोगे? आप ब्रेक लगाओगे. अच्छा, जब आप ब्रेक लगाओगे, आपने डीएक्सेलरेट किया कितनी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से. और जब तुम ब्रेक लगा रहे हो तो तब एट दैट टाइम योर कार विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन.
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और धीरे धीरे स्लो होते होते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी, राइट। तो इस यहां पर वो कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चला है वो, ठीक है, पहले उसकी स्पीड बढ़ी फिर उसकी स्पीड कम हुई, राइट। तो वो बोल रहे हैं कुछ टाइम के लिए उसने एक्सेलरेट किया, कुछ टाइम के लिए उसने डीएक्सेलरेट किया। यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है इफ इट रिमेन्स इन मोशन फॉर 3 सेकंड्स। रिमेन इन मोशन फॉर 3 सेकंड मतलब फ्रॉम स्टार्ट टाइम टिल 3 सेकंड्स। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही गाड़ी ने एक्सेलरेट किया और डीएक्सेलरेट किया। सो एवरीबॉडी पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हैं, राइट। अब बेटा हम लेट कर लेते हैं कि गाड़ी एक्सेलरेट की है ना, तो पहले अब मैं एक बात समझ सकता हूं कि मेरे पास जो सी कार है, कार पहले उसकी स्पीड 0 थी, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी थी, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद गाड़ी कुछ मैक्सिमम स्पीड पर पहुंची, वी मैक्स पर पहुंची, और फिर उसने गाड़ी ने ब्रेक लगा दी। देखो इसकी अभी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इसकी 0 थी और वेलोसिटी मैक्स इसकी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अब गाड़ी ने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगा के अब ये अपनी इसकी स्पीड यहां पर इंक्रीज हो रही है और यहां पर स्पीड क्या होगी, अब डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होके फिर से गाड़ी कहां पर आ गई, रेस्ट पर आ गई, और इसकी फिर से स्पीड इसकी कितनी हो गई, 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो लेट से अब मैं इस पर्टिकुलर चीज को बोल देता हूं A, इसको बोल देता हूं B और इसको बोल देता हूं C। तो यानी पहले गाड़ी A टू B गई, फिर गाड़ी B टू C गई। तो while C गाड़ी की जो एक्सेलरेशन थी, एक्सेलरेशन वाज 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और वो किस डायरेक्शन में थी, लेफ्ट डायरेक्शन में थी, माइंडेड, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग दिस साइन कन्वेंशन, राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो अभी बेटा एक बात का ध्यान रखना, व्हेन बॉडी इज गोइंग फ्रॉम A टू B, तो उसका U इस डायरेक्शन में है और AB इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, और जब B टू C जा रही है तब गाड़ी का वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में है, कुछ V मैक्स है, ठीक है, और फिर गाड़ी डी एक्सेलरेशन उसकी इस तरफ, दैट इज -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब वो हमारे को एक चीज और बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं इफ द कार रिमेन्स इन मोशन फॉर 3 सेकंड्स, यानी कि वो गाड़ी A से लेकर C तक कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया है, दैट इज ये टोटल सेट A से T टाइम वो उसने ट्रेवल किया है 3 सेकंड्स के अंदर। अब मैं एक चीज मान लेता हूं लेट गाड़ी ने A टू B एक्सेलरेट किया, कार एक्सेलरेट फॉर टाइम t1, यानी कि कार ने एक्सेलरेट कितने टाइम में किया, A से B तक किया, तो मैं बोल देता हूं A से B वो आई t1 टाइम में, एंड कार डी एक्सेलरेट फॉर टाइम t2। अब t2 कौन सा टाइम है, t2 टाइम यहां से यहां तक का नहीं है, डी एक्सेलरेशन का टाइम है, यानी कि B से लेकर C तक उसने t2 टाइम लिया। तो अब टोटल A से C तक उसने कितना टाइम लिया था, 3 सेकंड्स। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई सर, दैट इज t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स। t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्वेश्चन में मेरे पास इक्वेशन गिवन है। अब t1 t2 क्या है, आई हैव टू लेट इट वेरी केयरफुली, ये हमने लेट किया। t1 is the time of acceleration and t2 is the time of deceleration। तो अब मेरे पास t1 भी अननोन है और t2 भी अननोन है, राइट। और मेरे को सबसे पहले मैंने आपको बोला था, ये तो अभी मैंने गिवन लिखा है, आई हैव टू फाइंड आउट, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड आउट दैट इज v max। दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज माय रिजल्ट व्हिच आई वांटेड टू फाइंड आउट। तो अब मैंने सोचा कि भैया मेरे को V max चाहिए, राइट। इफ आई वांट टू फाइंड आउट V max,
तो मेरे को पता है इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम गिवन है, तो मेरे पास दिमाग में थोड़ा सा चीज आई, देखो मेरे पास वेलोसिटीज गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है। तो अब मैं एक काम करता हूं, आई विल मेक इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लगाता हूं फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। जब बॉडी ए टू बी जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज v max, दैट इज vm इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितनी है 2। अच्छा मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं, और उसको टाइम कितना लगा a से b तक जाने में, दैट इज t1। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दैट इज 2t1 इज इक्वल्स टू vm। And similarly, now I will apply the equation from B to C. Right? अब अगर मैं B to C इक्वेशन कौन सी लगा रहा हूं, V equals to U plus AT। अब आप बोलोगे सर आप ये तो लगा चुके हो, हाँ भैया, अब मैं लगा रहा हूं फ्रॉम B to C लगा रहा हूं। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब बेटा मैं A to B लगा रहा हूं, जब मैं A से B जा रहा हूं तो A मेरा इनिशियल है, B मेरा फाइनल है। अब जब मैं अब B से C जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं मोशन को कॉन्सेंट्रेट कौन से पॉइंट पर कर रहा हूं, मैं B to C कंसंट्रेट कर रहा हूं, और अगर मैं B to C कंसंट्रेट कर रहा हूं, अब मेरा B इनिशियल पॉइंट बन जाएगा और C फाइनल पॉइंट बन जाएगा। राइट? अब अगर B इनिशियल है तो B पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी थी, B पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी थी, दैट वाज vm, क्योंकि अब ये डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है, यहां से यहां तक बॉडी आई, Vmax से इसकी स्पीड हुई 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू पीछे को थी 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से यहां तक आने को उसको कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। राइट? t2 टाइम लगा। तो अब मेरे पास यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है गाड़ी की, अब आप बोलो सर आपने तो बोला फाइनल यहां पर 0 है, भैया फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूं, ये इक्वेशन लगा रहा हूं मैं B to C, तो अब मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहां पर 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज B पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, दैट इज vm, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, पीछे को है कितनी 4, तो इसलिए मैं इसको -4 पुट करूंगा, और कितना टाइम लिया इसको, t2 टाइम लिया। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, दैट इज 0 इक्वल्स टू vm -4 t2, और यहां से सॉल्व करके किसके इक्वल आया, दैट इज 4t2 इज इक्वल्स टू vm। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये वाली जो सी इक्वेशन थी, लेट्स से दिस इक्वेशन इज अ स्टार इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो मेरे को क्वेश्चन में मिली। राइट? अब मेरा फंडा क्या है, मेरे को Vmax फाइंड आउट करना है, मेरे को T1 T2 नहीं फाइंड आउट करना। आई कैन फाइंड आउट T1 T2, बट मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को Vm फाइंड आउट करना है। तो मैं अब एक काम करता हूं ना, मैं वहां से फर्स्ट इक्वेशन से T1 की वैल्यू को निकालता हूं, और सेकंड इक्वेशन से T1 की वैल्यू को निकालता हूं, और उसको यहां पर पुट करता हूं, तो आप देखोगे वो दोनों इक्वेशंस में सिर्फ Vm ही बच जाएगा। राइट? तो व्हाट आई विल नाउ डू, आई विल नो दैट सर यहां से T1 की वैल्यू किसके इक्वल आई, सर T1 is equals to Vm by 2 and T2 is equals to Vm by 4। तो मैंने अब T1 और T2 की वैल्यू को उठा के पुट किया किसके, ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट किया, और जब मैंने ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट किया T1 की वैल्यू दैट इज Vm by 2 प्लस Vm by 4, T2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3, और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा एलसीएम विल बी 4, 2 2 जा 2 Vm, 4 4 जा 1, दैट इज Vm is equals to 3, it is 3 Vm by 4 is equals to 3, तो यहाँ से 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, और Vm will becomes out to be 4 meters per second। तो what I will require, Vm को मेरे को निकालना था, और मेरे पास Vm की वैल्यू आ गई, that is 4 meters per second square। और अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर if he has asked the time of acceleration, so you can very clearly put it over here 4 to Tn की वैल्यू आ गई 2 seconds, and if you will put over here, तो आपके पास T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2 सेकंड, आपको पता टोटल टाइम इज 3 सेकंड्स, तो T2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 सेकंड आ गई। चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे आप इसको वैल्यू को इधर पुट कर दो, 4 पुट कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, T2 की वैल्यू 1 सेकंड आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया था, आपसे Vm पूछा गया था, देन दिस विल बी योर आंसर। ठीक है,
तो अब बेसिकली आप सभी बच्चों को मैंने जो बोला था कि पॉज करके वीडियो को सॉल्विंग करो, ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगाया होगा। जिन लोगों का आंसर आ गया दैट इज वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया तो सी कि हाँ भी सर ने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। मैंने ए से बी सॉल्व किया, फिर बी से सी सॉल्व किया, और माइंड इट जो मैंने T1 और T2 को लेट किया उसको फिर से ध्यान से देखो। T2 मैंने टाइम यहां से लेकर यहां तक कलेक्ट नहीं किया, मैंने A टू B का टाइम, A टू B जब बॉडी गई उसका टाइम लिया T1, और जब बॉडी B टू C गई उसका टाइम लिया T2, B टू C का, और टोटल टाइम यहां से यहां तक का 3 सेकंड्स की बात। तो लेटिंग आप कैसे कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। अब अभी मैंने आपको ग्राफ्स करवाए नहीं है, बट इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जब मैं आपको ग्राफ्स कराऊंगा आपको और अच्छे से जबरदस्ती अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए मैं आपको एक जर्नल थोड़ा सा बता रहा हूं। जिन लोगों ने ग्राफ्स किए हुए हैं उनके लिए, वैसे मैं जिन्होंने नहीं किए उनको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाता हूं तो मेरे को पता है इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट विल बी स्ट्रेट लाइन, तो पहले गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी फिर गाड़ी की स्पीड कम होगी, तो दिस विल बी द वीटी ग्राफ। इसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा बनाऊंगा। गाड़ी कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट किया और कुछ टाइम के लिए डीएक्सेलरेट किया, दिस इज 3, तो टोटल टाइम इज 3 सेकंड्स, ये 0 है, तो हमने इस चीज को T1 लेट कर लिया और इस चीज को T2 लेट कर लिया। माइंड इट, T1 इज एक्सेलरेशन का टाइम, और यहां पर ये जो सा ये पर्टिकुलर चीज है दिस इज V max। नाउ तो ये इसका VT ग्राफ बन गया, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, स्लोप्स को इक्वेट करके यू कैन फाइंड द टू इक्वेशंस एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Vm using graphical method। बट अभी मैं करवा नहीं रहा हूं, when I will tell you what is the graphical method then I will make you solve through graphical, ठीक है। बट अभी आप इसको ऐसे ही करो। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। यस बेटा, एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहे हैं, a bus starts from rest with acceleration of 1 meters per second square, initial speed of bus is 0 and acceleration 1 meter per second square, a man who is 48 meters behind the bus starts with uniform velocity of 10 meters per second। तब इस बंदे ने क्या देखा कि वो बस चलने वाली है, ठीक है, वो बस चलने वाली है और वो उस बस के ऊपर चढ़ना चाहता है, तो ये मैन रन करने लग गया। कितनी स्पीड से रन करने लग गया, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second। और वो बोल रहे हैं कि कितने मिनिमम टाइम में ये पर्सन इस पर्टिकुलर बस को कैच कर लेगा, राइट। एवरीवन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, ये बच्चा इस बस को पकड़ लेगा कितने टाइम में, T टाइम में पकड़ लेगा, ठीक है। अब एक बात है कि अगर ये बस खड़ी होती, इफ बस वाज स्टैंडिंग, तो इसको 48 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना था और इसको यहाँ पर पहुंच जाना था। अब मेरे को एक बात पता है कि हाँ भैया वो उसको बस यहाँ पर तो नहीं खड़ी होगी, अ चाइल्ड हैज टू रन मोर देन 48 मीटर्स, यानी कि बस विल ट्रेवल, उस टाइम के अंदर बस भी थोड़ा सा आगे चले जाएगी। मैं मान लेता हूं कि बस विल ट्रेवल डिस्टेंस x, डिस्टेंस x, बस x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, यहां से बस x डिस्टेंस आगे आ जाएगी और यहां पर आके मैन इस बस को पकड़ लेगा, मैन इस बस के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस विल ट्रेवल डिस्टेंस x, तो मैन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मैन विल ट्रेवल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मैन को 48 तो भागने ही भागना है, प्लस जितना बस और भागी दैट इज 48 प्लस 6। आई थिंक सो ये सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब बेटा मैं इक्वेशन बनाऊंगा, किसकी इक्वेशन बनाऊंगा, एक इक्वेशन बनाता हूं इस बस की, ठीक है। तो बस का इनिशियल स्पीड मेरे को पता है, एक्सेलरेशन मेरे को पता है, तो आई विल, डिस्टेंस इज x, तो आई नो दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर
सबसे पहले मैं बस के लिए इक्वेशन को बनाता हूं, तो एस एस ट्रेवल्ड इज एक्स इज इक्वल्स टू यू का वैल्यू कितना है बस का, दैट इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 इंटू टी स्क्वायर, तो इसको मैं देखूंगा इट विल कम्स आउट टू बी x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन 2। And similarly, if I will make the equation for man, तो मैन के लिए भी मैं इक्वेशन यही यूज कर रहा हूं, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर मैन की तो एक्सेलरेशन 0 ही है, हाँ भाई अगर एक्सेलरेशन 0 है तो अपने आप ये टर्म 0 हो जाएगी, और जब ये टर्म 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 48 प्लस x इज इक्वल्स टू मैन की स्पीड कितनी, अच्छा अब यहां पर मैन की स्पीड लेनी है आपको, मैन की स्पीड कितनी है, दैट इज 10, और मैन इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा यहां से यहां तक आएगा कितने टाइम में, टी टाइम में। तो एक बात मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, बस यहां से यहां पर आएगी टी टाइम में, और मैन यहां से यहां तक आएगा टी टाइम में। सो दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस विल बी माय सेकंड इक्वेशन। तो अब मेरे को x को एलिमिनेट करना है, तो आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट यहां से x की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर बाय 2, आई विल पुट अ वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो यहां से x की वैल्यू उठा के यहां पर पुट किया तो मेरे पास क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वेशन विल बी, क्योंकि मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं, एलिमिनेटिंग x, तो 48 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10t। तो बेसिकली अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ठीक करोगे तो इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96, टी स्क्वायर माइनस 20t, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 10th क्लास के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना सीखा हुआ है, तो अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपके पास t के दो आंसर आ जाएंगे, तो वन इज 8 सेकंड एंड सेकंड टाइम इज t इज इक्वल्स टू 12 सेकंड्स। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था मिनिमम टाइम, यू हैव टू आस्क अबाउट मिनिमम टाइम, तो जिसमें वो बस पकड़ लेगा। तो मिनिमम टाइम पॉजिटिव, ये भी दोनों टाइम पॉजिटिव है, राइट। तो मिनिमम टाइम कौन सा आएगा, दैट इज t इज इक्वल्स टू 8 seconds will be your answer। ठीक है, this will be your answer। मिनिमम टाइम आपसे पूछा गया था। हाँ, अब बेसिकली ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहां पर बेटा देखो बस इज ओवर हियर, तो मैन जब भागेगा तो पहले ये बस को पकड़ लेगा, अगर लेट्स से बस के ऊपर ना चढ़े, ठीक है, तो ये पहले ये आगे यहां तक आ गया ना, अभी चढ़ भी सकता है, नहीं भी चढ़ सकता। अगर ये चढ़ गया बस, फिर तो बात खत्म होगी, 8 सेकंड्स पर ये बस चढ़ के बात खत्म होगी, ठीक है। अब लेट्स से ये भागते ही रहा 10 की स्पीड से, अब क्या होगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये 10 की स्पीड से भाग रहा है, तो ये आगे चले जाएगा, बस की स्पीड अभी कम होगी, कुछ टाइम के बाद बस फिर एक्सेलरेट करके आएगी, फिर ये इसको क्रॉस करके जाएगी, और वो कौन से टाइम पर क्रॉस करके जाएगी, इसको 12 सेकंड्स पर, तो ये 12 सेकंड्स पर भी बस को चढ़ सकता था, ठीक है, राइट, क्योंकि बस की स्पीड 10 से कम होगी 8 सेकंड्स तक, तो इसलिए बस पीछे रह जाएगी अगर वो भाग के आगे चले गया। बात समझ में? तो आपको ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना, अगर somebody wants to discuss with me, you can discuss it with me, the answer is 8 seconds, right, everyone note it down, ठीक है। और अब अगर आप सभी ने नोट डाउन कर लिया, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को you can solve it by using a relative method also। तो relative method से आप इसकी कैसे सॉल्विंग करोगे, तो अब आपने बेटा क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आप बोलोगे सर आपने तो रिलेटिव एक्सेलरेशन के साथ तो सिखाया ही नहीं है, तो भैया एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप सॉल्विंग रिलेटिव मेथड से करना चाहते हो, तो जो वेलोसिटी, लेट्स से किसी पर्टिकुलर बॉडी को आपको रोकना है, अब बोलोगे सर ये तो पहले रुकी हुई है, नहीं, ये विद द टाइम रुकी नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप क्या करो, रिलेटिव से सॉल्व करने के लिए आप किसी भी एक बॉडी को रोक दो, ठीक है। अगर आपका ये हो गया दैट इज वेल एंड गुड, मैं रिलेटिव से आपको बता रहा हूं कि अगर एक्सेलरेशन में रिलेटिव आ जाता है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी तो इसकी 0 ही है, तो इसकी वेलोसिटी 10 है, तो यानी कि वेलोसिटी में कोई पंगा नहीं करना हमारे को,
इसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये इधर को मूव करने लग जाएगी। बेटर ये रहेगा ना कि अगर मैं इसके ऊपर एक्सेलरेशन पीछे को लगा दूं कितनी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी वेलोसिटी तो पहले ही 0 थी, अब मैंने इसके ऊपर एक्सेलरेशन पीछे को लगा दी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी नेट एक्सेलरेशन कितनी हो गई? इसकी नेट एक्सेलरेशन होगी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी स्पीड भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, तो अब ये बॉडी मूव ही नहीं करेगी। और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। अब बोलोगे सर आप इसकी स्पीड के ऊपर कुछ करो, नहीं, मैं स्पीड के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी ऑपरेशन स्पीड के ऊपर हमने नहीं किया। यहां पर इसका एक्सेलरेशन 0 था, इसका एक्सेलरेशन 1 था, इसके एक्सेलरेशन को रोकने के लिए मैंने पीछे को 1 लगा दिया, तो जो ऑपरेशन मैंने इस पर किया सेम ऑपरेशन मैं इस पर करूंगा, यानी कि पीछे को इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा दूंगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो अब इस मैन की नेट एक्सेलरेशन इनिशियल स्पीड कितनी है 10, u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में है। और इस बस की नेट स्पीड कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन भी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि अब बस ये यहीं की यहीं खड़ी है, बट हो क्या रहा है, मैन भाग तो रहा है, बट मैन की हर सेकंड स्पीड कम हो रही है, कितनी है 1 से कम हो रही है। और मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है यहां से यहां तक आने के लिए, मैं क्योंकि बस तो वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि अभी मैं इसको रिलेटिव के मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, तो बस तो यहीं खड़ी है, तो मैन को यहां से यहां तक आना 48 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा, दैट इज s = ut + ½ at²। एस मैन को कितना करना है 48 ट्रेवल करना है बस को चढ़ने के लिए, ठीक है। मैन का स्पीड कितना है, दैट इज 10t + ½ of -1 × t²। तो इसको देखोगे यहाँ पर इट इज इक्वल्स टू 48 इज इक्वल्स टू 10t - t²/2। तो अगर आप बच्चे सभी ध्यान से देखोगे, ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली सेम जो आपके पास यहां पर आई थी। देखो एग्जैक्टली सेम है, फर्क क्या है, इसमें t²/2 यहां पर अगर आप ले आओगे तो 48 + t²/2 = 10t आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली इक्वेशन सेम, राइट। तो सॉल्विंग करके आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू यू कैन आल्सो गेट विद रिलेटिव मेथड। तो फर्क क्या हुआ, वहां पर हमारे को दो इक्वेशंस बनानी पड़ी, रिलेटिव के मेथड से हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, आपके लिए अभी ये एक्सेलरेशन वाला कांसेप्ट नया है। अगर आपको रिलेटिव के मेथड से नहीं सॉल्व करना आप मत करो, ठीक है। बट समझने के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है तो एक पर्टिकुलर बॉडी को रोक दो। रोकने के लिए इसकी स्पीड तो पहले ही 0 थी, तो स्पीड पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, हमने ऑपरेशन किस पर किया, हमने ऑपरेशन एक्सेलरेशन पर किया। अब जो ऑपरेशन अगर मैं एक्सेलरेशन पर कर रहा हूं तो अगली बॉडीज के ऊपर भी मैं एक्सेलरेशन के ऊपर ही ऑपरेशन करूंगा, मैं और किसी चीज के ऊपर ऑपरेशन नहीं करूंगा, इस बात का ध्यान रखूंगा, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगा दिया, जो डायरेक्शन में लगाया इसके ऊपर वही डायरेक्शन में लगा दिया इसके ऊपर, इसका भी 1 पीछे को लगाया था, इसका भी 1 पीछे को लगा दिया, दैट इज द कांसेप्ट, राइट। सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, राइट। तो हाँ जी बेटा, सो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने क्या सीखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, उसके कुछ क्वेश्चंस किए, 2-3 क्वेश्चन एक्सेलरेटेड मोशन के किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद वर्टिकल मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन इन वर्टिकल मोशन, राइट। उसके कुछ क्वेश्चंस की सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बाद वाले लेक्चर्स में करवा दूंगा फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। मेन हम अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा टू लर्न काइनेमेटिक्स वी हैव टू इन्वेस्ट द टाइम, आई एम अगेन रिपीटिंग। काइनेमेटिक्स के अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। एक बुक बेसिक बुक खत्म हो गई, एक और बुक उठा लो, उसमें से जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे आपका फिजिक्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। कंसेप्ट्स यही है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं इससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। बट मैं आप सभी बच्चों को बार बार यही बोल रहा हूं कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू सॉल्व द काइनेमेटिक्स, और मैकेनिक्स पार्ट आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस फिजिक्स के अंदर और बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट।
ये नहीं मैटर करेगा कि आप अगर बोलो कि नहीं सर अब तो मैं किसी और टीचर का लेक्चर लगा लेता हूं, अब मैं ये कर लेता हूं, अब मैं वो बुक पढ़ लेता हूं, अब मैं वो बुक पढ़ लेता हूं और मेरी फिजिक्स हो जाएगी। नहीं, फिजिक्स ऐसे नहीं होती। फिजिक्स को करने के लिए आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग किया, उसमें डाउट आएगा, यू हैव टू आस्क द टीचर। और जितने ज्यादा आप डाउट्स लोगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस के डाउट्स लेकर आओगे, उतना ज्यादा आप उससे सीखोगे, गलती करोगे और सीखोगे। राइट? एंड थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, एवरीबडी बी हैप्पी। ठीक है, खुश रहो, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू।